یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، فتویٰ وہ شخص دے رہا ہے کہ جس کے اوپر خود پہلے سے فتوے موجود ہیں۔ انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے، لیکن اس کو 295 پر تصحیح نہیں۔ آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ ان قابل احترام ہیں، وہ صبر سے کام لیں اور چیخو پکار نہ کریں۔ یہ سارے کام مرزا جمی خود اپنی زبان سے کر چکا ہے۔ ذمہ دار لوگوں سے، اکابر سے، علماء سے یہ کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے متعلق خاموشی توڑی۔ مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کی گرفتاری کے متعلق گفتگو ایک ویڈیو کلپ کی شکل میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر شیئر کی، جس میں انہوں نے واضح طور پر ان لوگوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے قتل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ہم اس بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگائیں جو انہوں نے کرسچن کمیونٹی کا ریفرنس دیتے ہوئے بیان کیا تھا، تو اس طرح تو پھر ان لوگوں پر بھی FIR 295C کا مقدمہ درج ہونا چاہیے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ FIR درج کروائی ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے واضح الفاظ میں کسی اور کا ریفرنس دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گفتگو کی تھی، نہ کہ انہوں نے اپنا ریفرنس دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ الفاظ یوز کیے تھے جن کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر 295C کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگرچہ میرے انجینئر صاحب سے 100 معاملات میں اختلاف ہوں گے، لیکن اس معاملے میں وہ واضح طور پر انجینئر صاحب کی حمایت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس طرح کے ایکسٹریم رویے کو اختیار کرتے ہیں اور ہر انسان پر جو کسی کا ریفرنس دیتے ہوئے بات کرتا ہے اس پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ اس مقدمے کو پاکستان کے کسی بھی معتبر ادارے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک یا فرقے سے ہو، اس کے پاس اس معاملے کو لے کے جائیں، وہ اس معاملے میں انجینئر صاحب کے حق میں ہی بیان دے گا، نہ کہ ان کے مخالفین کے حق میں بیان دے گا کہ انجینئر صاحب نے کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی کی ہے۔ آپ مفتی صاحب کی اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ انجوائے کریں۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے۔ مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے میں بابا کے دول کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس میں۔ نیکسٹ اپڈیٹ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے بھی ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے متعلق اپنا موقف بیان کیا۔ اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے نہ صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے متعلق گفتگو کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی جواب دیا۔ جیسا آپ سب بھائیوں نے ابھی ایک کلپ دیکھا جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کھل کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی حمایت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب کے مخالفین پر بھی خاصی تنقید کی ہے۔ تو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ کو اس معاملے میں غلطی لگی ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ماضی میں کئی علماء کرام، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافی نازیبا الفاظ یوز کیے ہیں جس سے ان پر گستاخی کا الزام واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے میں مفتی صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ حالیہ کچھ عرصے میں مفتی طارق مسعود صاحب پر بھی گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا تھا۔ تو مفتی صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پر جب یہ معاملہ ہوا تھا، آپ پر جب یہ گستاخی کا فتویٰ لگا تھا، آپ کی اور انجینئر صاحب کی اس غلطی میں کافی فرق ہے۔ انجینئر صاحب ایک عالم دین نہیں ہے، جبکہ آپ ایک عالم دین ہیں، تو لہٰذا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو انجینئر صاحب کو سخت سے سخت سزا دینے کے قائل ہیں اور ان کے حامی ہیں۔ آپ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں۔ رہ گیا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ، جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے، لیکن اس کو 295 پر تصحیح نہیں۔ آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ ان قابل احترام ہیں۔ انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں۔ آپ کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے، یوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا، قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا۔ نیکسٹ اپڈیٹ مفتی فضل ہمدرد صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا آپ سب بھائیوں کو میں نے اپنی حالیہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے باقاعدہ طور پر کافر ہونے کے فتوے لگائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کیا تھا۔ تو اسی حوالے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے انجینئر صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس فتوے کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں، کیونکہ اس طرح کے فتاوا جات حالیہ دور میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب پر بھی لگے تھے اور اس طرح کے کافی فتوے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے مسالک پر بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس فتوے کو آپ لوگ بالکل اگنور کریں جس کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں بنتی۔ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس فتوے کی اس وجہ سے بھی کوئی حیثیت نہیں بنتی کیونکہ جو انسان انجینئر صاحب پر فتویٰ لگا رہا ہے، حال ہی میں اس شخصیت پر بھی کافی فتوے لگائے گئے تھے۔ مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کے خلاف اس فتوے کے متعلق کیا کیا بیان کیا،
मैं चाहूंगा आप उनकी जुबानी खुद सुने। फलां मौलवी ने अगर फतवा दे दिया है तो वो कुरान और सुन्नत की तरह जो है ना, ये इनकी अपनी राय, इस फतवे इनके एक दूसरे के खिलाफ मौजूद है, तो इस फतवे की कोई शरई हैसियत नहीं है कि जिसको ये कह रहे हैं कि कोई शरई हैसियत। तो लिहाजा इस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको जो पेश कर रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर कि ये एक आलिम दीन ने फतवा दिया, खुद इनके खिलाफ फतवे मौजूद हैं, खुद इनके खिलाफ प्रोटेस्ट मौजूद है। नेक्स्ट अपडेट जावेद अहमद गांधी साहिब से रिलेटेड है। उनसे भी अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की गिरफ्तारी के मुतालिक सवाल किया गया कि आपकी इस मामले में क्या राय है। तो इस सवाल का इन्होंने ये जवाब दिया कि मेरी इस मामले में ये राय है कि कोई भी ऐसा शख्स जिससे कोई इस तरह के कलिमात अदा हो जाएं तो हम उस पर कुफर के फतवे नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसके इस बयान पर तंबीह करेंगे और इसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जावेद अहमद गांधी साहिब ने यह कहा कि मेरी नज़र में पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे उलमा इकराम मौजूद हैं जिनको एक इमाम की हैसियत से देखा जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का इल्म बहुत ज़्यादा है। तो मेरी नज़र में इन लोगों को चाहिए कि वो वाज़े तौर पर अवामुन नास की और ख़ास तौर पर उलमा इकराम की इस ऐसे मामलात में तरबियत करें कि वो एक दूसरे से इख्तलाफ किस तरह रख सकते हैं, और ये भी बताएं कि इख्तलाफ होने के बावजूद एक दूसरे पर कुफर के फतवे नहीं लगाने, बल्कि एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा दीन भी इसी चीज़ की इजाज़त देता है कि हम एक दूसरे की इस्लाह करें, ना कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाएं। आप जावेद अहमद गांधी साहब की इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखें। अच्छा, आपने ये पूछा है तो मैं आप ही की वसातत से अपनी कौम के जिम्मेदार लोगों से, अकाबिर से, उलमा से ये कहता हूँ कि वो आगे बढ़े और इस तरह के मामलात को ये रुख इख्तियार करने से रोकने की सही। नेक्स्ट अपडेट मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी साहिब से रिलेटेड है। जैसा आप सब भाइयों को पता होगा कि पिछले दिनों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसी हवाले से इन्होंने अपना मौकिफ बयान किया, जिसमें इन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि हम उस वक्त खुशियां मनाएंगे जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सजा दी जाएगी। 295 सी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असी उदों खुशी मनावांगे जदों ये जड़ा आईने पाकिस्तान है ਉਹਦੇ मुताबिक 295 सी ਦਾ मतलब है कि जड़ा हुजूर दी बेअदबी करे या किसी भी नबी दी शान दे अंदर बेअदबी करे ਉਹਦੇ नापाक वजूद कोलों पाक सरजमीन नु पाक कर दिता जाए। नेक्स्ट अपडेट मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहिब से रिलेटेड है। इन्होंने भी अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के गिरफ्तारी के मुतालिक अपना मौकिफ बयान किया। अपनी इस वीडियो में इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के काफ़ी पुराने क्लिप को यूज़ करके इंजीनियर साहिब के स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जब इंजीनियर साहिब पहले दूसरे लोगों के क्लिप यूज़ करके उन पर गुस्ताखी के फतवे लगाते थे, तो फिर अब इंजीनियर साहिब के स्टूडेंट्स और इनके हमायती किस बिना पर इंजीनियर साहिब का दिफा कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। जबकि इंजीनियर साहिब माजी में खुद भी लोगों पर फतवे लगाया करते थे, तो जब अब उन पर यह फतवा लगाया जा रहा है तो उनके स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ हो रही है कि इंजीनियर साहिब पर जुल्म किया जा रहा है। आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहिब की इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देखें। तो ये वक्तन फवक्तन इस तरह के गुस्ताखाना कलिमात और अल्फाज अपनी ज़बान से निकालता रहा है। तो जब अपनी बारी आई है तो अब मिर्जा जिन्नी के हमायती जो है वो सबर से काम लें और चीखो पुकार ना करें। ये सारे काम मिर्जा जिन्नी खुद अपनी ज़बान से कर चुका है। नेक्स्ट अपडेट साहिल अदीम भाई से रिलेटेड है। उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की गिरफ्तारी के मुतालिक अपना मौकिफ बयान किया। अपनी इस वीडियो में साहिल अदीम भाई ने यह भी बताया कि अभी हाल ही में वो जेहलम गए थे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की अकेडमी जाने के लिए उन्होंने पुलिस से भी रब्ता किया था, लेकिन उनको पुलिस एहलकार ने यह मना कर दिया कि वो जेहलम अकेडमी नहीं जा सकते और ना ही वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब से मिल सकते हैं। इसके साथ साथ साहिल अदीम साहिब ने यह भी कहा कि ये जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर कुफर के फतवे वगैरह लगा रहे हैं, तो ये लोग उस टाइम कहाँ होते हैं जब फलस्तीन पर इतना जुल्म किया जाता है इसराइल की जानिब से, तो तब इन लोगों के फतवे वगैरह किधर गए होते हैं, तब ये लोग फलस्तीन के मुतालिक कोई फतवे वगैरह क्यों नहीं जारी करते। आप साहिल अदीम भाई की इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखें। Today I want to go to Jhelum myself. I was told by the police that मैंने अभी एक भाई का कहा था कि जब फलस्तीन की बारी आई थी तो इनसे फतवे नहीं निकले थे और मिर्जा की बारी आई तो इनसे फतवे निकल आए हैं। तो आपको समझ नहीं आ रही बायस्ड और स्क्यूनेस और बायसनेस के अंदर फतवा नहीं यूज होता इस्लाम में। नेक्स्ट अपडेट अहमद फौजान भाई से रिलेटेड है। इन्होंने भी अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की गिरफ्तारी के मुतालिक अपना मौकिफ बयान किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इख्तलाफ की बातें तो रहती हैं, हर इंसान को एक दूसरे इंसान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े उलमा इकराम इंजीनियर साहिब के हक में बयानात जारी करें, जिसमें उन्होंने नुमाया नाम मुफ्ती तारिक मसूद साहिब, तारिक जमील साहिब, इसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब और आखिर में उन्होंने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब को मुखातिब करते हुए ये कहा कि वो इंजीनियर साहिब के हक में वाज़े तौर पर बयान दें, जिसमें वाज़े तौर पर वो ये कहें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब से हमारे 100 इख्तलाफात हों, लेकिन वो बंदा सच्चा आशिक रसूल है और ना ही वो बंदा गुस्ताख रसूल हो सकता है। अपनी इसी वीडियो में इन्होंने ये भी बयान किया कि किस बिना पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो गुस्ताख रसूल हैं, जबकि उनका तो नारा ही यही होता है कि मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं। तो आप लोग किस तरह किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं
जिसने किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं की, क्या उसका कसूर ये है कि उसका ताल्लुक किसी बड़े फिरके या जमात से नहीं, और ना ही उसके पीछे कोई ऐसा गिरोह मौजूद है जो काफी ताकतवर हो। इसके साथ साथ अहमद फौजान भाई ने यह भी कहा कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ उलमा इकराम को तौबा और रुजू का मौका दिया जाएगा जिनका ताल्लुक किसी न किसी फिरके से होता है? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब को तौबा और रुजू का मौका नहीं दिया जाएगा? मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ, और खुसूसन आपका नाम सर इसलिए कि आप बिल्कुल अभी मिलती जुलती कैफियत से सर आप दो चार हो चुके हैं। आपके लब क्यों सिले हुए हैं कि आप समझते हैं कि इस मामले के अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो गए? क्या इंजीनियर मिर्ज़ा के जेल में होने की वजह यह है कि उसका कोई मसलक नहीं है, उसका कोई फ़िरका नहीं है, उसके पीछे खड़े होने वाला कोई ताकतवर गिरोह नहीं है? नेक्स्ट अपडेट डॉक्टर तैमूर रहमान साहिब से रिलेटेड है। उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन अपनी इस वीडियो में इन्होंने इंजीनियर साहिब के रिलेटेड जो मौक़िफ़ बयान किया, मुझे ऐसा लगता है कि इनके अलावा ये मौक़िफ़ किसी ने भी बयान नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपनी इस वीडियो में ये कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर जो FIR दर्ज की गई है इसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की है और उनके लिए नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए हैं, जबकि हकीकत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी का रेफरेंस देते हुए कुछ कलिमात यूज किए थे जिसकी बिना पर इन पर कुफर के फतवे लगाए गए और इसके साथ साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आइए आप सब भाई मेरे साथ डॉक्टर तैमूर रहमान साहिब की इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखें। मसला मोहम्मद अली मिर्जा पे लिहाजा आर्टिकल 295C काट दिया गया। गौर कीजिए कि FIR में उन पर चार्ज ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ कोई ऐसी जुमला इस्तेमाल किया जो कि 295C के तहत आता है, बल्कि उन पर एक्यूजेशन ये है कि उन्होंने मुसलमानों के एहसासात को मजरूह किया है। उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कोई भी ऐसी बात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ना तो कभी कही है ना वो कह सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट प्रोफेसर जावेद इकबाल साहिब से रिलेटेड है। इन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ बयान किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे जब ये पता लगा कि इंजीनियर साहिब को 295C मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया है तो इन्हें यह महसूस हुआ कि इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के दिफा में एक वीडियो क्लिप शेयर करें। अपने इस वीडियो क्लिप में इन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि जब इनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की बात हुई थी तो इन्होंने इंजीनियर साहिब को एक पक्के ईमान का आदमी पाया, और इसके साथ साथ वो ये चीज़ तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब किसी किस्म की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक गुस्ताखी कर सकते हैं। और उस गुफ्तगू में जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया या ईमान का जिक्र आया तो मैंने ये पाया कि वो बहुत ही पक्के ईमान के आदमी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के बारे में, उनके मकाम के बारे में, उनके खत्मुन नबी होने के बारे में जरा सा भी मैं गुमान नहीं कर सकता दूर दूर तक कि इस किस्म का कोई वो इंटेंशनली या इवन अनइंटेंशनली उनके मुंह से कोई बात निकल सकती है। नेक्स्ट अपडेट मुफ्ती तारिक मसूद साहिब और इसके साथ साथ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब से रिलेटेड है। जैसा मैंने अपनी हालिया वीडियो में आप सब भाइयों को एक वीडियो दिखाई थी जो मुफ्ती तारिक मसूद साहिब की थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल की जा रही थी, जिसमें वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब की जानिब से लगाए गए उस फतवे पर बयान दे रहे हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर उन्होंने कुफर का फतवा लगाया था, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहिब वाज़े तौर पर यह बयान कर रहे हैं कि हम इस फतवे से अग्री नहीं करते, और इनके साथ साथ कई उलमा इकराम भी इस फतवे से अग्री नहीं है। तो इसी हवाले से अभी हाल ही में एक तकरीब के दौरान डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने जो इंजीनियर साहिब के इस अमल पर फतवा लगाया है, उन्होंने ये कहा कि हमने हरगिज़ हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा नहीं किया कि वो इंजीनियर साहिब को सजाए मौत का फैसला सुना दें। उन्होंने तो इंजीनियर साहिब की एक गुस्ताखी हाईलाइट की है जो कि उलमा इकराम का काम बनता है कि किसी भी इंसान की किसी भी किस्म की कोई गलती हो उस पर वो उसको हाईलाइट करें। वो कह रहा था कि एक मौलवी साहब ने वो जुल्म के खिलाफ फतवा दिया है और हम उसे इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि उन्होंने फतवा दिया है कि उसे कत्ल कर दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो मैं कहता हूँ ये लोग किस कदर खाइन हैं। हमने उसका जुर्म बयान किया और वो आलमी दीन की ड्यूटी है, आम बंदा बयान नहीं कर सकता। अगर आप सब भाइयों को यह वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ इन तमाम की तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई हैं। और अगर आप में से किसी भाई के पास कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट हो जो नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर की जा सकती है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करे, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। खैर ये थी आज की सारी न्यूज़ अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट न्यूज़ वाली वीडियोज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।